जी नाजरीन, जहाँ पे इस वक्त हम मदीना मसाउ कैरल्टन के बाहर मौजूद हैं। अमेरिका के अंदर इलेक्शन इस वक्त अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपने भी आज वोट कास्ट किया है और हमने भी आज वोट कास्ट किया है, तो हमने सब लिख लिया यहाँ पर कि हमारा भी वोट हो गया है। और ये अक्सर कहते होते हैं कि मैं जब ये बोर्ड और साइंस देखता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुसलमानों के नाम भी यहाँ पे लिखे जाएं। कैमरामैन अगर आपको दिखाया, हम आपको पूरा जहाँ पे एक टूर वर्चुअल टूर आपको देते हैं। इम्तियाज़ राही साहब, 2 गेट हैं जे मदीना मसाउ कैरल्टन डैलस टेक्सास के। मेरे साथ जनाब एपीपेक के सदर जनाब मुहिब गिरामी इम्तियाज़ राही साहब तशरीफ़ फरमा हैं। I looked for convenience. This was convenient. So, but I'm glad I did because it was simple. The directions were easy to get here, pulling in, walked in. जी, सबसे पहले तो मदीना मस्जिद की मैनेजमेंट को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी हमारी कि मसाजिद जो हैं वो पोलिंग सेंटर बने, और इलामा बाबर रहमानी साहब की ये जो कोशिश है और इनके जो अच्छे ताल्लुकात हैं पॉलिटिशियन से, जैसे एनडी कमिश्नर है या जो लोकल मेयर है हमारा, उनके साथ जो मुख्तलिफ मौक़े पे हम उनको इनवाइट करते हैं और वो हमारे दोस्त बने हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि अब ये पोलिंग स्टेशन अप्रूव हो गया है। Pretty excited about this voting season and just encouraging everybody to go out and vote. That's fundamental, right? It was so good because it's the first time the early voting is in Medina Masjid of Carrollton. Who lives in Dallas County, they should come to the Medina Masjid. They should come out and vote. We won't vote. We don't know what they are doing. So they should come out and vote. I'm doing this during my lunch. It was like a few minutes away. Walked in, was greeted at the door, and no wait. That is the best part. जी देखें, जहाँ पे अर्ली वोटिंग और वोटिंग जहाँ पे जो वोटर है वो भी बाहर आ रहे हैं, हम इनसे लेते हैं। कैसा रहा आपका? Assalamu alaikum, बहुत अच्छा रहा. Yeah, it's a really nice place. Medina Masjid is in our local community. Well, early voting started today and it goes through Friday, November 1st. It was very quick, very easy. आज फर्स्ट डे है अर्ली वोटिंग का, 1 नवंबर तक जारी और सारी रहेगी। It has been really good. I made sure to take some time off work just to come here and vote because I am a professional accountant, but voting is what comes first because your voice, like I said, it matters the most. So make sure you cast your vote. This is Talat and I came to the Medina Masjid the first time. They are surviving for the vote. So I am here and I voted. So I'm glad they did that service. And my voice is my vote, so which is I did it. So I will recommend all our community people and the other people so they can come and they can vote so we can raise our voice. I'm a Quran teacher. My name is Usman Bawani. And I recommend everyone in the community around the Dallas-Fort Worth area, please come and vote for us because your voice matters. Without you speaking up for yourself, nothing will going to change. I mean, the process was very easy, especially if you already know how you're voting, which I did, and walked in, casted my vote, and the lady was very kind and directed me. Checking in was very simple. Just presented my ID and a copy of my registration, and boom. And like I said, when I looked up the location, it said 0 minutes wait. Oh, 0 minutes. It said 0 minutes wait when I looked up the location. And that was right as I was leaving and trying to decide between this location and one other. And this one said 0 minutes. I said, oh, I'm going to that one. और आज डैलस की अवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि अमेरिका में किसी मस्जिद में पहली बार पोलिंग लोकेशन जहाँ पे डिक्लेयर हुई है डैलस के अंदर ख़ास तौर पे, और जहाँ पे डैलस में जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उसके अलावा स्पेनिश कम्युनिटी भी है, दूसरी कम्युनिटी भी है जो इस तरह की लोकेशंस पे आना चाहती है। हमारे साथ इस वक्त मदीना मस्जिद ऑफ कैरल्टन डैलस टेक्सास के इलामा बाबर रहमानी साहब और इम्तियाज़ राही साहब, जिन्होंने बहुत AP-पैक के, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की इस लोकेशन को डिक्लेयर करने के लिए। अगर मदीना मस्जिद को देखें, हर साल जहाँ पे बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, रमज़ान में 30 दिन तक जहाँ पे इफ्तार बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसके अलावा ईद पार्टी होती है, ईद मिलन पार्टी होती है, बहुत बड़े फेस्टिवल जहाँ पे होते हैं, हज़ारों के तादाद में लोग जहाँ पे आते हैं। तो जितने भी इमिग्रेंट कम्यूनिटी है, मुस्लिम कम्यूनिटी है और आसपास के जितने भी दूसरे लोकल कम्यूनिटी है, जहाँ पे एक ऐसी फ्रेंडली लोकेशन है जहाँ पे आके वोट कर सकते हैं और जहाँ पे वोट डाल सकते हैं, और हर बंदे को पार्टिसिपेट करना चाहिए अमेरिका की सियासत के अंदर। हम बात करते
करते हैं सबसे पहले मदीना मस्जिद ऑफ कैरल्टन डैलस टेक्सास के अल्लामा बाबर रहमानी साहब से। जी अल्लामा बाबर रहमानी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। एक ऐसा माइलस्टोन आज हम इतना फ़ख्र महसूस करते हैं। मस्जिद में तो आते रहते हैं लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि मस्जिद के अंदर पॉलिटिक्स और वोटिंग की बात की जा रही हो। लेकिन मदीना मस्जिद जो सियासत के अंदर ख़ासतौर पर लोकल, हमने देखा आप मेयर को भी बुलाते हैं, सिटी मेयर्स को भी बुलाते हैं, लोगों को भी बुलाते हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वूमन, सारे लोगों को जहाँ पे बुलाते हैं। लेकिन आज आपने जो एक माइलस्टोन अचीव किया है, जहाँ पे एक लोकेशन डिक्लेयर करवाई है, एक ऐसा संग मील है जो बुनियाद बनेगा बाकी भी जितने भी अमेरिका के अंदर बाकी कम्युनिटी के मसाजिद हैं उनके अंदर। तो उसके अलावा आपने देखा गारलैंड के अंदर भी मदीना मस्जिद के अलावा मक्का मस्जिद में भी एक इनिशिएटिव लिया जा चुका है। तो थोड़ा सा बताइएगा, और आज जो लोकेशन, आज फर्स्ट डे है, अर्ली वोटिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम मेरे जितने भी सब व्यूवर्स हैं उनको मेरा सलाम। मुनीर भाई जनाब चलता टीवी की तरफ से, हम सबसे पहले मुनीर भाई चलता टीवी की तरफ की इनकी इंतज़ामिया और इनके बड़े मशकूर हैं कि ये हमेशा ऐसे मेजर इवेंट आके कवर करते हैं। और मेरे लिए ऑनर है कि मेरे साथ जनाब एपीपेक के सदर जनाब मुहिब गिरामी इम्तियाज़ राही साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पूरा डैलस टेक्सास इनसे बाखबर है, जो इनकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं मुसलमानों में अवेयरनेस के लिए। तो हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपने भी आज वोट कास्ट किया है और हमने भी आज वोट कास्ट किया है, तो हमने सब लिख लिया यहाँ पर कि हमारा भी वोट हो गया है। तो मुनीर भाई, आपके सवाल के जवाब का बहुत आसान जवाब ये है कि दीन हमारा जो है वो दुनिया से जुदा नहीं है। हमारा दीन जो है वो दुनिया के साथ है, बल्कि हमारे वहाँ तो अगर आप सूरह बकरा पढ़ें तो पहले दुनिया को रखा गया है। अल्लाह फरमाता रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरती हसना। अल्लाह फरमाता कि पहले अच्छी दुनिया की भी दुआ मांगो, फिर आखिरत, अच्छी दुनिया भी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों ही लाजिम मलजूम है। हम कभी भी दुनिया से अपने आप को डिअटैच नहीं कर सकते, हमें दुनिया के साथ चलना है। और जिस तरीके से हमें अपनी वॉइस हम लोग आज आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको पहुंचा रहे हैं, ये वोटिंग भी एक वॉइस है जो हमारे दिलों में, हमारे और जहनों में जो कुछ चलता है, हम उसको किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो हमारा वोटिंग का पावर है। और ऑलवेज़ आपको पता है, ये हमेशा कहा जाता है कि वोट इज़ पावर, वोट इज़ योर वॉइस। आप ही की ताकत है और आपको इस्तेमाल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2024 को जो हमारा इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं यूएस में, उसमें मदीना मस्जिद ने ये इनिशिएटिव लिया। डैलस काउंटी के जो कमिश्नर हैं एंडी, वो ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, चल कर आए, उन्होंने लोकेशन को देखा, अप्रूव किया और कई महीनों की मेहनत के बाद जो है अब इलेक्शन शुरू हैं। आज 21 अक्टूबर है, आज अर्ली डे का वोटिंग का पहला दिन है। तो आज से वोटिंग शुरू हुई है। अभी आपको पता है कि हमेशा अर्ली वोटिंग में टर्नआउट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ग्रेजुअली ये पिकअप होगा। सिर्फ हम ही नहीं है, बल्कि मक्का मस्जिद गार्लैंड भी जो है वहाँ भी उनको भी अप्रूव है, वहाँ भी आज वोटिंग हो रही है। तो एक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि मुसलमानों को अवेयरनेस देने के लिए कि आपके वोट, आपकी वॉइस, आपकी पावर है, आपका राइट है। आप वल्लाह इसके लिए जागिए। इसके लिए मदीना मस्जिद ने ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और इसमें हमारे मुहिब गिरामी जनाब इम्तियाज़ राही साहब जो एपीपेक के सदर हैं, उनकी बड़ी रहनुमाई शामिल है। उन्होंने हमें रहनुमाई हमेशा फरमाते हैं किस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो मेरी गुजारिश भी रहेगी हम इससे पहले आगे बढ़ें। इम्तियाज़ साहब से कुछ गुफ्तगू फरमाइए। इम्तियाज़ राही साहब जो एपीपेक के रूए रवा हैं और किसी भी तारुफ के महताज नहीं। अगर हम देखें कि ये पोलिंग लोकेशन के अंदर इनका बहुत ही अहम किरदार अदा रहा है। जी आप ने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें पॉलिटिक्स के अंदर, और आज हमने देखा कि उसका जो है एक संग मील जहाँ पे रखा जा चुका है। आज लोग वोट भी कास्ट कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मदीना मस्जिद की मैनेजमेंट को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी हमारी कि मसाजिद जो हैं वो पोलिंग सेंटर बने। और अल्लामा बाबर रहमानी साहब की ये जो कोशिश है और इनके जो अच्छे ताल्लुकात हैं पॉलिटिशियन से, जैसे एनडी कमिश्नर है या जो लोकल मेयर है हमारा, उनके साथ जो मुख्तलिफ मौक़े पे हम उनको इनवाइट करते हैं और वो हमारे दोस्त बने हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि अब ये पोलिंग स्टेशन अप्रूव हो गया है और तमाम मुसलमान जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी कि मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ने के लिए वो आ सकते हैं और अपना वोट भी डाल सकते हैं। और हमारा ये ख्याल है और हम इसको वॉच कर रहे हैं कि मुसलमानों का टर्नआउट जो है वो अर्ली वोटिंग में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मस्जिद बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, यहाँ पे हमारे पास पार्किंग है। और हमारे अल्लामा साहब की ये विज़न है कि हमारे जो कम्युनिटी है
वो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिवली इंगेज हो, और ख़ास तौर पे बच्चे। और ये अक्सर कहते होते हैं कि मैं जब ये बोर्ड और साइंस देखता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुसलमानों के नाम भी यहाँ पे लिखे जाएं। कैमरामैन अगर आपको दिखाया, हम आपको पूरा जहाँ पे एक टूर वर्चुअल टूर आपको देते हैं। मुमताज़ राही साहब, 2 गेट हैं जे मदीना मस्जिद कैरल्टन डैलस टेक्सास के। एक ये फ्रंट जो रोड गुजर रही है उसके सामने, और जहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं, और एक दूसरा गेट है वहाँ पे भी आपको जहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। जी बताइए। देखें, जो मुसलमानों का जो वोट है, जो अगर आप ज़रा देखें इलेक्शन का जो पिछला जो वक्त गुजरा है, उसमें स्विंग स्टेट्स में मुसलमानों के वोट ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस वक्त हम तमाम मुसलमानों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पॉलिटिकली एक्टिव हों, आप वोट ज़रूर डालने जाएं, भले जिस पार्टी को भी आप वोट देना चाहते हैं, ये आपका चॉइस है। अगर आप रिपब्लिकन्स को पसंद करते हैं, आप उनको वोट दे सकते हैं। आप डेमोक्रेट्स को पसंद करते हैं, आप उनको वोट दे सकते हैं। ये आपका हक है और आपका चॉइस है, बल्कि आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप वोट लाजमी दें, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे मुसलमान लोग भी रहते हैं, बसते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम वोट की अहमियत को जानते हैं। हमारे लिए बिल्कुल जो दूसरे अमेरिकन सिटीज़न्स हैं, हम भी उसी तरह उन्हीं की तरह हम पार्टिसिपेट करें, ताकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकें। जब हम सोसाइटी का हिस्सा होंगे तो कल हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है या हमारे साथ प्रेजुडिस रवैया अख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ के सिस्टम का हिस्सा होंगे। और जो पॉलिटिशियन हैं वो बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में टोटल कितने वोटर्स हैं, उनमें से कितने वोटर जो हैं वो शो अप हुए हैं, और उनमें स्विंग वोटर्स कौन हैं। तो इस वक्त मुसलमानों का जो पूरे तमाम पॉलिटिशियन पूरे अमेरिका में मुसलमानों की वोट को बड़े ख़ास नज़र से देख रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी। और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी और मदीना मस्जिद की ये कोशिश है कि मुसलमान वोट ज़रूर डालें, और वोट अपनी मर्ज़ी से जिसको भी देना चाहें, लेकिन वोट डालना बहुत ज़रूरी है, ये हम पे फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया। जी ये अभी हमें मदीना मस्जिद कैरल्टन के अलावा बाबर रहमानी साहब थोड़ा सा इस लोकेशन के बारे में डिटेल वर्चुअल टूर करवाएंगे। इन जगहों पर मुसलमान बच्चों के नाम भी होने चाहिए। मुसलमान बच्चों के नाम, जो बच्चे आज हमारे यहाँ पर बॉर्न हुए, रेज हुए, उन्होंने कॉलेज फिनिश किया, स्कूल फिनिश किया, कॉलेज फिनिश किया, अब वो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करके इस सिस्टम में लेके आ रहे हैं कि अगर आज यहाँ पर किसी आपको मुसलमान बच्चे का नाम नहीं दिख रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में आपको कुछ मुसलमान बच्चे और बच्चियों दोनों का नाम या सिस्टम में देखें, या ग्रास रूट से आपको ऊपर जाना होगा। पहले आपको जो है सिटी काउंसिल का मेंबर इलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें, मेयरशिप के लिए हो, फिर स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आप जाइए, और उसके बाद जो है ना फिर आगे फर्दर आप प्रोग्रेस करें। लेकिन अगेन ग्रास रूट से ही आपको काम शुरू करना होगा, और ये इसका पहला इनिशिएटिव है। मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, ज़रा ये देखिए कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है कैंडिडेट्स के जो है यहाँ पर सबके जो है यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ जो है कहने चाहिए कि इस वक्त कैंडिडेट्स हैंगे जिनके सारे यहाँ पर नाम लगे हुए हैं, और ये सारे जो हैं इस वक्त यहाँ पर ये सामने हमारा, मैं वो भी दिखाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हमारा पोलिंग इस वक्त बूथ कहाँ है। सो मदीना मस्जिद जो है ये लोकेटेड है डैलस टेक्सास के अंदर कैरल्टन में, और तकरीबन ये 2.5 एकड़ पर लोकेटेड है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत बड़ी मस्जिद है। इसका जो बैक जो हॉल है, जो मल्टीपर्पज़ हॉल है, वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट ओकेजन्स के लिए। तो डैलस काउंटी ने हमारे इस हॉल को अप्रूव किया, और उसके बाद जो है वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कंटिन्यू लोग वोट कर रहे हैं। तो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो बस ये मैं आपको कहूँगा कि तमाम मुसलमानों को कि जो लोग इस वक्त ख़ास तौर पे अगेन डैलस के अंदर हैं, टेक्सास में हैं, ये कहीं पर भी यूएस के अंदर हैं, प्लीज़ वेकअप। ये आपकी वेकअप कॉल है, ये आपकी एग्जिस्टेंस, आपके वजूद का इस वक्त जो है मसला है। अगर आप नहीं खड़े होंगे वोट देने के लिए, आप अगर यूएस सिटीज़न हैं, आप रजिस्टर्ड वोटर हैं, लेकिन आप सिर्फ सुस्ती काहली की वजह से आप कहें नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, आप यकीन जानें आप टेबल का मेन्यू बनने जा रहे हैं। फिर से हमें टेबल का मेन्यू नहीं बनना है, हमें पार्ट ऑफ द टेबल बनना है, ताकि हम अपनी वॉइस को, अपने राइट को हम जस्टिफिकेशन के साथ हम इसको रेस कर सकें। और अगेन वोटिंग दिस इज़ द बेस्ट, कहना चाहिए कि एक जो डेमोक्रेसी के अंदर आपको एक राइट मिलता है वोटिंग का, दिस इज़ द बेस्ट। सो मैनी कंट्रीज़, मुनीर भाई आपके इल्म में है, आप जाइए, आप ज़िंदगी भर वहाँ पर रहें, आपको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। सो मैनी कंट्रीज़, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन आपको यहाँ रहते हुए सबसे बड़ा जो हमारा ये कंट्री है यूएस, इसमें सबसे बड़ा आपको ये राइट है कि आप वोट कर सकते हैं। आपको एवरी ईयर ये राइट दिया जाता है कि आप लोकल इलेक्शन से लेके स्टेट तक के इलेक्शन तक में, कांग्रेस तक के इलेक्शन के लिए आपको एवरी ईयर आपको राइट है। सो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि आप लोग प्लीज़ वेकअप होइए,
अर्ली वोटिंग है, ये बेस्ट टाइम है, आपको बड़ी बड़ी लाइनों से बच जाएंगे आप। आइए और वोट करें। आने के बाद जहाँ पर भी इस वक्त फैसिलिटी है, जिस काउंटी में भी आप रहते हैं, आप उस काउंटी की जो भी आपकी नियरेस्ट लोकेशन है पोलिंग स्टेशन, वहाँ जाइए और अपने वोट को कास्ट करिए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए, अपनी 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 एग्जिस्टेंस को जो है, जैसे बताया इम्तियाज़ साहब ने, अपनी एग्जिस्टेंस को जो है आप उनको एक्नॉलेज कराइए कि आप भी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम हैं और आपको इसी सिस्टम में जो है रह के आगे जो है अपनी वॉइस को और अपने राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।